गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो चैप्टर है क्लास 9th बायोलॉजी में, चैप्टर का नेम है टिश्यू। टिश्यू इस चैप्टर को शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट में चलेंगे बायोलॉजी के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ what is the meaning of biology? बायोलॉजी, अगर इस टर्म को देखें हम लोग बायोलॉजी को तो ये दो सेपरेट वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, and logy means study, means branch of science where study about living organism, that is called biology. Branch of science where study about living organism, that is called biology. यहां पे एक टर्म आया हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म? As you know, in lower classes, living organism are two types. First is unicellular organism, and second is the multicellular organism. What is the meaning of unicellular organism? Those type of living organism, they complete their vital functions like respiration, circulation, locomotion, excretion, reproduction, etc. by the single cell. Is called unicellular organism. Like example, amoeba, paramecium, euglena, etc. But when we discuss about multicellular organism, those type of living organism, they complete their own function by the help of a particular organ system. Is called multicellular organism, like human beings, animals, and plants. But if we take the example of human beings, respiration is complete by lungs, transportation of blood by heart, excretion by kidney. So these vital functions are complete by a particular organ system like heart, like kidney, like lungs. These organ system according to cell theory, all living organisms are made up of cell. Cell is the structural and functional unit of life, and cell are arises from the pre-existing cells. Why cell is the structural and functional unit of life? Cell को structural and functional unit of life क्यों कहते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये सेल है, ग्रुप ऑफ
सेल क्या बनाता है? टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाता है? ऑर्गन, ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म। लाइक ह्यूमन बींग्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। एंड ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाते हैं? टिश्यू। तो यहां टिश्यू की जो डिफिनीशन होगी, वो टिश्यू की डिफिनीशन क्या है? टिश्यू all the embryonic group of cell of plant, all the embryonic group of cell of plant are similar in origin and function is called tissue. Means group of cell of plants are similar in origin and function is called tissue. मतलब टिश्यू क्या होता है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल है which are similar in origin and function, that is called tissue. टिश्यू का जो सबसे पहले स्टडी किया गया था, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी where study about tissue is called histology. Histology, branch of biology where study about tissue is called histology, and the term histology was given by Mayer. How many types of histology? There are two kinds of histology. First is type of histology. There are two kinds of histology. First is plant histology. Plant histology, and second is animal histology. Who was father of plant histology? Andrew, father of plant histology, and Grew. And Grew. And father of animal histology, Bichet. हिस्टोलॉजी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये बस ऐसे समझने के लिए बता रहे हैं। टाइप ऑफ हिस्टोलॉजी, देयर आर टू काइंड्स ऑफ हिस्टोलॉजी। फर्स्ट इज प्लांट हिस्टोलॉजी,
हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी अबाउट टिश्यू। प्लांट हिस्टोलॉजी में प्लांट की टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। फादर ऑफ प्लांट हिस्टोलॉजी एम्ब्रियो एंड एनिमल हिस्टोलॉजी में एनिमल टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी बाइचेट, फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी बाइचेट। नाउ अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू। There are two types of tissue. First is plant tissue and second is animal tissue. Plant tissue are classified into two parts. First is meristematic tissue. Meristematic tissue and second is permanent tissue. Permanent tissue. Now, what is the meaning of meristematic tissue? अब हम लोग प्लांट टिश्यू के are two types. First is the meristematic tissue, second is the permanent tissue. अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरिस्टेमेटिक्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरिस्टेमेटिक? द मेन थीम और द मेन function of meristematic means division of cell। मीन्स मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ सेल। सेल का कंटिन्यूअस डिवीजन होता रहता है और कंटिन्यूअस डिवीजन होने के साथ साथ ये प्लांट के कुछ स्पेसिफिक रीजन पे होते हैं। ये सेल का डिवीजन स्पेसिफिक रीजन पे होते हैं जहां से प्लांट में ग्रोथ होता है, उसके ग्रोथ या सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज करता है। मतलब जब सेल डिवीजन होगा तभी तो न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा और न्यू सेल का जो फॉर्मेशन होगा उसके थ्रू प्लांट की साइज में, प्लांट के शेप में, प्लांट की ग्रोथ में इंक्रीजमेंट होगा। तो मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ सेल ऑफ प्लांट ऑफ पर्टिकुलर रीजन्स। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज द एपिकल मेरिस्टेम, meristematic tissue. Second is the lateral meristematic tissue and third is intercalary meristematic tissue. Meristematic tissue means meristematic tissue are classified into three parts. First is the apical meristematic tissue, second is the lateral meristematic tissue and third is the intercalary meristematic tissue. अब हम एक एक उठा करके सबके बारे में स्टडी करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अगर हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझें, ये प्लांट का एपिकल पार्ट होता है, एपिकल
मेरिस्टेमेटिक होता है, यहां पे नोड्स होते हैं, जहां पे इंटर कलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो पोर्शन होता है ये होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ध्यान से समझिएगा। मेरिस्टेमेटिक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां कहां पाया जाता है, किस प्लेस में पाया जाता है? ये पर्टिकुलर पाया जाता है स्टेम एंड रूट में। इसका जो मेन फंक्शन होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, इंक्रीज या ग्रोथ ऑफ स्टेम। स्टेम का ये क्या करता है? ग्रोथ करता है। इंटरकलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है आपका इंटरनोड ऑफ लीफ। इंटरनोड ऑफ लीफ मींस इंटरकलरी में भी क्या होता है? कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता रहता है। ये सेल डिवीजन होते क्या है? सेल डिवीजन आर बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकंड इज द मियोसिस। माइटोसिस मींस parental cells are divided into two identical daughters and number of chromosomes are equal as parents, but in meiosis are basically this type of division involved in the sexes, and in the meiosis 4 daughter cells are divided and number of chromosomes are haploids। तो ये माइटोसिस मियोसिस का डिवीजन क्लास 11 में उसको डीपली पढ़ेंगे, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन ये होता क्या है? ये करता क्या है कि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसके थ्रू इंटरनोड्स ऑफ लीफ यानी कि इसके लीफ में भी इंक्रीज होता रहता है। थर्ड जो है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो मेन फंक्शन होता है ये करता क्या है? इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ प्लांट के थिकनेस को इंक्रीज करता है, या ये कह सकते हैं इंक्रीज ग्रोथ ऑफ प्लांट। एंड थर्ड, कुछ बुक में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है इट्स ऑल्सो हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ। मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर divided into 3 parts: apical meristematic tissue, intercalary meristematic tissue and lateral meristematic tissue. Apical meristematic tissue are basically present in the stem and roots, which help in the growth of stem and roots by the process of cell division. And second is the intercalary meristematic tissue. These type of meristematic tissue are present in the internode of leaf. They help in the increase the size of leaf. And third is the lateral meristematic tissue. These type of meristematic tissue are present on the side of plants, stem side of plants. They help in the increase of thickness of plant or increase the growth of plants and also help in the secondary growth. तो इस तरह से ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू के बारे में ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज सिंपल एंड सेकेंड इज द कॉम्प्लेक्स।
इसके बारे में स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। थैंक यू।